So, Hare Krishna, dear devotees, we wish to welcome you all for this beautiful devotee association, this Vaishnav Sangh. And today, though we are confined, locked down, but our Sotnak Namhat program online is ongoing. And today, the topic that we have chosen is the blossoming of the Bhakti Lata. And this is coming from a very beautiful book, the Madhurya Kadambini by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So we're going to magnify it. We're going to analyze it, in details. So we'll try to put that in front of all of you. The Jadguru Srila Prabhupada Ki Jai. So let's have darshan of this beautiful creep of devotional service, as we mentioned it. We're going to go down to the root. We have to start from the root, where you plant the seed. So once you plant the seed, now what happens, we're going to see, and what are the precautions we have to take. So we're going to talk about that. So यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है the field of the heart. So let's start first of all by offering our most humble obeisances to all our Vaishnava acharyas and Jagat Guru Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, प्रिय भक्तगण, आप लोगों का फिर से आप लोगों का पूर्ण रूप से स्वागत है. We wish to welcome you all from the core of your heart. Thank you so much for joining. And we see that there is Kunal Prabhu also is following us live on Facebook, but some of you are here with us on Zoom. So, आप सबों का स्वागत है. So, when we are talking about the Bhakti Lata Bij, so we are going to start with the introduction. थोड़ा सा मैं side में लूँगा. I'm going to just magnify it so that you can read, and so this is, as you mentioned, the field of the heart. Thanks to the spiritual master, जो हमारे गुरुजन है, उनकी कृपा से हमारे हृदय में ये जो भक्ति लता बीज है, that is, it's kind of being planted there. बीज तो है, the beach is always there, the seed is always there, but क्या है कि ये हमको नहीं दिखता है, because we are covered with this material consciousness. तो ये बीज है, is dormant, but our first duty is to ensure that we have to awaken that dormant love for भगवान श्री कृष्ण. वो भक्ति को जगाना है हम लोगों को. तो ये कैसे होता है? It's thanks to the mercy of a spiritual master and thanks to sadhu संग. तो कितने बार हम लोग आप लोगों को सुनाए हैं कि साधु संग is a very key element. But before sadhu संग, first of all, हम लोगों में क्या होना चाहिए? थोड़ा सा आप देखें ऊपर में, we are talking about श्रद्धा. So यहाँ, this is the field of the heart. यहाँ पे we are going to plant the seed of devotional service. यहाँ पे भक्ति, we are going to plant the seed of devotional service. And कितने बार हम लोग बात कर चुके हैं? We have the nine processes of devotional service. तो सब दिखने वाला है हम लोगों को आज. We are going to study them closely today. So the heart of the field of the heart. So for planting a seed, first of all, we have to ensure that the field or the soil is fertile. तो शुरुआत होता है श्रद्धा से. आप देख रहे हैं, the awakening of faith. श्रद्धा होनी चाहिए. श्रद्धा होने से कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं. There is no difference between भगवान and his holy name. जैसे हम लोग बताए, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला में कोई अंतर नहीं है. There is no difference. So ठीक उसी तरह यहाँ पर जब ये श्रद्धा होती है तो क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप आफ्टर श्रद्धा कि भगवान ही
सब कुछ है. Then you're going to go to the next step, which is called sadhu sang. Sadhu sang means you're going to associate with devotees, with saints. So this is a very, very important aspect in devotional service. भक्ति में बढ़ने के लिए यदि साधु संग न हो तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते. We can try to follow all the rules and regulations, but if we don't associate with devotees, तो बहुत difficult हो जाता है. It becomes near to impossible to be able to to progress on the path of devotional service. तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा ये साधु संग से क्या होता है. So we are analyzing in details this very beautiful explanation given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in the very beautiful book Madhurya Kadambini. तो यहाँ पे बताया गया है, as the vine of bhakti grows, ये जो भक्ति लता जो लता है और आगे जब बढ़ता है तो क्या होता है, the devotional qualities that manifest continue to mature. सब बढ़ने लगता है हमारे में जो भक्ति है कि जो अलग अलग जो गुण है, जो talk about the qualities, the गुण of bhakti, that start manifesting, it starts maturing. तो साधु संग करने से क्या होता है, it nourishes the vine at every stage. तो हमने बताया आपको कि शुरुआत से होता है श्रद्धा. You need to have a very fertile land. जब आप बीज बोएंगे तो यदि वो जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, if it's not fertile, so it's not going to sprout. The seed is not going to sprout. तो at every stage we require sadhu sang. तो साधु संग क्या है, is going to nourishes the vine, वो जो भक्ति लता बीज को हर जितने भी अलग अलग सोपान है, every stage of bhakti is going to help. So this is now we starting from the root. अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे. So this is the importance of साधु संग. और शास्त्रों में बताया गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि हो. तो हमारा ये जो लता है भक्ति लता अब आगे बढ़ने लगा है. It starts sprouting, it starts growing. तो यहाँ हम आगे देखेंगे कि we have 6 different characteristics. We are going to talk about these 6 different characteristics at several points during this presentation. तो इसमें यहाँ पर क्या है, what are the 6 stages, इसके बारे में थोड़ा सा नंबर आपको दिखेगा. We have 6 characteristics of sadhana bhakti, भाव भक्ति and प्रेम भक्ति. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं. तो धीरे धीरे देखेंगे अभी ये सब जो है. We'll try to show that to you. So very important, भगवान जी की कृपा से और गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे जो हृदय में वो जो भक्ति लता बीज है, the seed has been planted. जिसे कहते हैं ना, इन चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. तो ये भक्ति लता बीज जब बोया गया है, it has been planted in the field of the heart, so we have to take care of it. So first we mentioned श्रद्धा. श्रद्धा के बाद साधु संग, और साधु संग ही आगे बढ़ाएगा हम लोगों को. As we are continuing, we see the beautiful plant and the leaves. So we mentioned about the 6 different characteristics. We are going to go to the first characteristic. पहला हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा जो भी संस्कृत शब्द हैं उसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे. So I'm going to magnify it a bit more so that we can see into details all these different points. The first characteristic of we talk about bhakti. I'm just trying to figure it out for all of you to follow. तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग चलते हैं वैधी भक्ति पर. We are following the path of Vaidhi Bhakti or the path of regulated devotion. नवदा भक्ति जो कहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यम पूजन सकीजन आत्मनिवेदनम. तो ये 9 तरीके के जो सोपान है, 9 different types of methods of doing bhakti. तो पहला है
the first step here that we are talking about, we just mentioned about the characteristics, 6 characteristics. First one is क्लेशग्नि. क्लेशग्नि अर्थात भक्ति destroys all miseries. तो जितने भी क्लेश हैं, जो क्लेश बताया यहाँ पे, तो क्लेश को भक्ति द्वारा हम लोग क्या करते हैं? We can overcome the miseries. So what are the 5 types of miseries बताया गया है यहाँ पर? एक तो है अविद्या. अविद्या meaning ignorance, अस्मिता false ego, राग attachment, द्वेष hatred, and अभिनिवेश absorption in worldly objects. तो भक्ति जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये जितने भी पीड़ाएं हैं, जितने भी क्लेश हैं, तो भक्ति सबका नाश कर देता है. Then we have the 4 types of sin. अब कितने कैसे कैसे हम लोग पाप करते हैं, तो आगे क्या दिखने वाला हम लोगों को? How are we going to experience that sin, the reaction, जो कर्म कहते हैं? So we are going to see, पहला है प्रारब्ध पाप, fructified sin, जो एक फल की तरह है, already it is ready to be consumed, so उसका effect we can start feeling. दूसरा है अप्रारब्ध पाप or unfructified sin. Unfructified, 2 types. One is ready and the other one has not become like a fruit. तीसरा जो है कोट पाप or seeds of sin. The seeds of sin, वो बीज की तरह है जो पाप. और तीसरा चौथा जो है बीज पाप, the desire seed of sin. तो एक तो है कैसा है, हमारे जितने भी अभिलाषाएं हैं, तो अभिलाषाएं, when talking about पाप, we have desire to do so many sinful activities, तो वो एक बीज के रूप में रहता है. तो 4 different types of पाप. एक तो already we are suffering from that, is already in the form of a fruit. और दूसरा जो है it's on the way, it's unfructified. जैसे आम है, एक कच्चा आम है, पक्का आम है, तो पक्का आम सबको खाते is fructified. और unfructified या कच्चा आम की तरह जो है, we are going to anyway, we are going to face it in the coming days. So this is how these 4 types of sins actually are being destroyed. भक्ति द्वारा ये सब नाश हो जाता है. अब दूसरा, we go to the 2nd characteristic. So we are still at the level of Shraddha and Sadhu Sang. So the 2nd characteristic of bhakti we mentioned here. आप देखेंगे, this is the 2nd leaf as we sing. तो यहाँ पर क्या है? शुभ दा. शुभ दा अर्थात भक्ति bestows all auspiciousness. सब कुछ मंगल हो जाता है, मंगल ही मंगल. तो यहाँ पर क्या है? Anukulya, kindness. Now, on the left hand side, we have seen all the types of sins, जितने भी पाप है और जितने भी पीड़ाएं हैं. और इधर इस और देखेंगे तो what are the good qualities or what are the auspiciousness that come in our life. So we develop these qualities. Anukulya, kindness, kripa, mercy, shama, forgiveness, satya, truthfulness, saralya, simplicity, and samya, equality. और धैर्य, you have patience, गांभीर्य, gravity, मानदत्व, honoring others, and अमानित्व, not expecting respect, and sarva saubhagya, all good fortune, and all other types of auspiciousness. भक्ति करने से ये सब कुछ हमारे जीवन में आने लगता है. And what happens? It's mentioned a distaste for objects that are unrelated to भगवान. जो भगवान जी के साथ उसका कोई नाता नहीं है, तो उसके लिए हमारे में वो जो बोलते हैं ना, we don't feel like, अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज करने में. And a thirst for that which is related to भगवान, और जो भगवान जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों को उस रास्ते पर चलने को इच्छा रहेगा. So this is the first 2 levels. We just talked about श्रद्धा, faith, और उसके बाद साधु संग. तो साधु संग करने से, as we associate with devotees, as mentioned, साधु संग is very very important. तो आगे बढ़ेंगे, साधु संग करते करते हम लोग आएंगे to the 3rd sopan, or which is the 3rd step. 3rd step
इन भक्ति as we're progressing there is भजन क्रिया. तो यहाँ पर जब भजन क्रिया कर रहे हैं हम लोग, the practice of devotional service, तो क्या होता है, let's see what happens. इस सोपान तक पहुंचे तो क्या होता है. So we're going to see number 1, उत्साहमयी. उत्साहमयी अर्थात इनिशियल एंथुजियाज्म. हमारे में उत्साह बढ़ता है, भक्ति करने का उत्साह. सुबह जागने का, मंगल आरती जाने का, एकादशी व्रत रखने का, 16 माला करने का, ये सब क्या है, हमारे में उत्साह होता है. So, उत्साह में इनिशियल एंथुजियाज्म. सेकंड वन, घन तरला, थिक एंड थिन प्रैक्टिस. हमारा जो साधना है, कभी बहुत दृढ़ता से करते हैं, तो कभी एकदम बोलते हैं ना, फीका फीका रहता है, कैसे करें, 16 माला कर देते हैं, नहीं करते. सो इट्स लाइक थिक एंड थिन प्रैक्टिस. तब तीसरा है व्यूढ़ विकल्पा, ऑसिलेटिंग रिजॉल्व. ये भी है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारे भक्ति में, तो ऑसिलेटिंग ऊपर नीचे होता है. एक दिन मंगल आरती जाए, एक दिन नहीं जाए, एक दिन जपा करें, एक दिन जपा नहीं करें. सो इट्स कॉल्ड ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग रिजॉल्व. और आगे बढ़ते हैं तो होता है विषय संग्रह. विषय संग्रह अर्थात स्ट्रगलिंग विद सेंस एंजॉयमेंट. तो जितने लोग भी भक्ति कर रहे होंगे, आप लोगों को तो लगा होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, कि ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को कि यू नो ये जो चपल सुख कहते हैं, मैटेरियल काइंड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट. कभी वी फील लाइक ओके लेट्स डू इट, चलो डैडी मत कर, क्यों बर्बाद कर रहे अपना समय. सो दिस इज हियर वी आर स्ट्रगलिंग विद सेंस एंजॉयमेंट. तो पांचवा है नियमाक्षमा, इनएबिलिटी टू अपहोल्ड वाउस. तो कभी भक्त लोग क्या करते हैं, वो लोग दीक्षा ले लेते हैं. दीक्षा लेने के बाद तब वो लोग आगे बढ़ने के लिए वी हैव सो मेनी डिफरेंट वाउस. यहाँ मांस नहीं, नशा पान नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, और सो मेनी थिंग्स, नो इंटॉक्सिकेशन, चाय नहीं पियेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे. तो ये सब हमारे जो नियम है. बट स्टिल एट टाइम्स वी सी क्या होता है, वी आर अनएबल टू अपहोल्ड वाव, नहीं कर पाते हैं, एकादशी के दिन व्रत नहीं रख पाते हैं. और जो वी सी द सिक्स्थ लेवल नाउ, तरंग रंगिणी, एंजॉयिंग द मंडेन बेनिफिट्स ऑफ भक्ति. भक्ति करने से, देखिए भक्ति करने से हमको क्या मिल सकता है, भुक्ति मिलेगा. वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ भक्ति. भक्ति और भुक्ति अलग अलग है. भुक्ति का मतलब है भोगना, भोगना. तो हमको भक्ति करना चाहिए, और साथ में भुक्ति जो भी होता है, we have to be very cautious whether we are going to enjoy it or whether we want to go ahead. So this is to the, we have reached the third level. तो आगे बढ़ते हुए हम लोग जब चलेंगे with भजन क्रिया, just start with the practice of devotional service. तो जैसे बताए थे, श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग करते करते हम लोग भजन क्रिया की ओर बढ़ते हैं. तब उसके बाद होता है अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ निवृत्ति अर्थात हमारे शरीर में या हमारे जो हृदय में जितने भी अनर्थ है, shortcomings, we have so many shortcomings. So how to clear all these misgivings, जो से कहते हैं. हमारे शास्त्र में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण जब भी कोई जो बोलते हैं राक्षस का वध करते हैं, उनको जब उनको मुक्ति देते हैं, तो वो सब कथा सुनने से जितने भी अनर्थ हैं, वो अनर्थ हमारे हृदय से निकल जाता है. It just goes out. It simply gets cleared. So क्या है, this is called अनर्थ निवृत्ति. For example, when we hear the beautiful pastime of भगवान श्री कृष्ण killing पूतना, कभी सुनते हैं ना कि बचपन में छोटे इतने शिशु, इतने छोटे उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अनर्थ, ये जो, sorry for that, I'm just going to try to put that again for you. Hare Krishna. ये तो नहीं है, I just have to go back.
Yes, I'm just stopping to share this. Sorry for that. We'll just continue again. I'm just going to share it again. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So kindly forgive us for that. ये थोड़ा सा ये जो Zoom पे ये होता रहता है. We keep on facing these all these technical problems. But I'm just going to share it again, that beautiful Bhakti Lata Beach. So maybe we won't be able to finish off with that full today. We'll try to continue. तो ये जो भक्ति लता है, तो यहाँ पर I'm just trying to magnify again. भक्ति जो है, ये भक्ति लता है. The creeper of devotional service. We have reached the level of Anartha Nivriti. Yes, we have reached here. So I just magnified that for you. We have around 8 minutes left. So I think whatever we'll be able to do, can continue next time. But आप लोगों को जितने भी आप लोग सीख रहे हैं, you have to apply it in your life. जैसे यहाँ पे बताए हैं अनर्थ निवृत्ति, when you are clearing all these misgivings from our heart by chanting the Hare Krishna Mahamantra, तो क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, obstacles born of past sinful activities, ये है अनर्थ निवृत्ति. दुष्कृतोथ, तो जैसे अविद्या है, ignorance, अस्मिता, false ego, राग, attachment, द्वेष, hatred, अभिनिवेश, absorption in worldly objects, ये कहाँ से है? Why is it coming in our life? ये सब हमारे पूर्व जन्मों के फल की वजह से, कर्म की वजह से हो रहा है. So obstacles born of past sinful acts. अब दूसरा है सुकृतोथ, obstacles born of past pious acts. हमने कुछ पुण्य कार्य भी किए होंगे, तो क्या होता है, जैसे हमने को भी किसी को मोक्ष चाहिए, डिजायर फॉर लिबरेशन, किसी को स्वर्ग चाहिए, डिजायर फॉर हेवन, डिजायर फॉर मैटेरियल एंजॉयमेंट, भुक्ति चाहिए किसी को. तो these are all actually there are all kinds of obstacles. क्योंकि शुद्ध भक्ति में ये भुक्ति भी काम नहीं आता है, जैसे बताया आप लोगों को. We should be going straight forward towards भगवान, और भगवान की ओर जाने के लिए बहुत शुद्धता होनी चाहिए. Now we're going to talk about the third and fourth examples of obstacles here. Bhaktyuttha, obstacles born of imperfectly performed bhakti. कई लोग भक्ति करते हैं किस लिए? लाभ के लिए, for some worldly gains. पूजा, they just do worship, and प्रतिष्ठा, adoration. But these are obstacles. क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो भक्ति है ना, वो हम लोग शुद्धता से नहीं कर रहे. Then we have अपराधोत्थ, obstacles born of past offenses. The 10 offenses to the holy names. हम लोग रोज सुबह जब जप करते हैं, जप मंगल आरती के समय हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि we have to avoid the 10 offenses. So the 10 offenses we have to know. नाम जप करते समय हम लोग को ये 10 अपराध, नाम अपराधों से दूर रहना चाहिए. 10 नाम अपराध के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो ये आज का जो सत्संग है वो कभी ये हो जाएगा 5 मिनट में खत्म. तो we won't be able to go in details, आप लोग माफ कीजिएगा. But for example, first one, to consider names of demigods like Lord Brahma or Lord Shiva to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के जो नाम हैं, हम लोग सोचेंगे कि नहीं ये तो भगवान विष्णु के नाम से अलग है. नो, यदि सोचेंगे तो ये एक नाम अपराध हो जाता है. तो अनर्थ निवृत्ति के बाद होता है निष्ठा. अब निष्ठा क्या है, उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं. निष्ठा क्या है? दैट इज कॉल्ड अनशेकेबल रिजॉल्व. जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो वैष्णव आचार्य देते हैं, सिखाते हैं कि जैसे कि एक तो है केले का जो झाड़ है, we take a banana tree, और एक we take a banyan tree. So both are trees. पर ये जो एक हाथी जब आएगा, if an elephant comes, he can easily uproot the banana tree. It's very easy. The banana tree can be very easily uprooted. But what about the banyan tree? तो बेर का जो वृक्ष है उसको जमीन में से उखाड़ के फेंकने में बहुत मेहनत लगेगा हाथी को. इट वोंट बी इजी, आसान नहीं रहेगा. तो इसीलिए निष्ठा और जो श्रद्धा है, इन दोनों के बीच में बता रहे हैं
श्रद्धा शुरुआत होता है भक्ति का, बट स्टिल कैन फॉल डाउन, गिर सकते हैं हम लोग उसकी वजह से, क्योंकि वो उतना दृढ़ नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है। तो वो है कैसे, केले के झाड़ की तरह, जो हाथी आकर उखाड़ के फेंक सकता है। पर जो निष्ठा है वो जैसे हम बताए पेड़ की वृक्ष की तरह है, बैंगन ट्री, सो सॉलिडली रूटेड कि कोई भी आके हमको ये दे कैनॉट डिस्टर्ब अस इन आवर भक्ति। तो दिस इज कॉल्ड अनशेकेबल रिजॉल्व। तो ये हमारा जो चारवा सोपान है भक्ति का। सो यहाँ पे बताया गया है तद अनुकूल वस्तु वर्तिनी, रेस्टिंग इन दैट विच इज फेवरेबल टू भक्ति। जो भी अनुकूल है भक्ति करने के लिए, हम लोग उसी में रहते हैं, हम उसके बाहर निकलना नहीं चाहते हम लोग। तो भक्ति में जो भी है वी हैव टू डू एक्टिविटीज ऑफ फेवरेबल। और व्हाट आर फेवरेबल, देख रहे यहाँ पर, अनुकूल काइंडनेस, कृपा मर्सी, क्षमा फॉरगिवनेस एंड सत्य ट्रुथफुलनेस। ये जो चार है देखा जाए तो ये हमारे जो धर्म के चार जैसे कहते हैं द 4 पिलर्स ऑफ धर्म। और देखते हैं साक्षात भक्ति वर्तिनी, रेस्टिंग डायरेक्टली इन भक्ति हरसेल्फ। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पे बताया गया है वी हैव कायिकी परफॉर्म बाय द बॉडी एंड देन परफॉर्म बाय द स्पीच, वाचिकी एंड मानसी परफॉर्म विद इन द माइंड। तो ये जब निष्ठा रहता है, हम लोग का जो बोलते हैं मन क्रम और वचन से हम लोग भगवान जी के सेवा करते हैं। सो वी हैव रीच्ड द लेवल ऑफ निष्ठा, दिस इज द 4th लेवल। आगे बढ़ेंगे तो आता है रुचि। रुचि मीन्स टेस्ट फॉर भजन। कोई नहीं बोलेगा आपको कि प्रभु आपको 16 माला करना चाहिए, नहीं करेंगे। तो आपको लगेगा हाँ आज 16 माला किया, कल मैं करूंगा 20 माला, एकादशी की 25 माला। ये रुचि है, टेस्ट फॉर भजन। तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, टेस्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एक्सेलेंस। एंड दूसरा जो है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी, टेस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एक्सेलेंस। तो ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी, नहीं तो जैसे हम बताए कि टाइम बहुत कम है, ये तो एक जूम कॉन्फ्रेंस है, जूम कॉल है, तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रिय भक्तगण। सो साधु संग करते करते हम लोग बढ़ेंगे आसक्ति की ओर। देखिए कितना सुंदर अभी पुष्प दिखने लगा हम लोगों को। ये भक्ति का जो लता बीज है, अब वो आगे बढ़ रहा है, भक्ति लता की लता बन गया है, और लता बढ़ते बढ़ते उसमें अब क्या हो रहा है, पुष्प, सुंदर पुष्प दिख रहे हैं हम लोगों को। तो दिस इज द लेवल ऑफ आसक्ति, अटैचमेंट टू श्री कृष्ण द ऑब्जेक्ट ऑफ भजन। तो हम लोग का क्या है, अब भगवान जी के बिना हम लोग रह नहीं सकते। तो आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भाव, ट्रांसेंडेंटल इमोशन। तो ये जब भाव आ जाते हैं, बोलते हैं ना प्रभु जब भाव में कीर्तन करे, भाव में सत्संग करे, तो दिस इज द लेवल वी आर सपोज्ड टू बी एमिंग टू कम। तब आते हैं हम लोग प्रेम, जो 9वें सोपान है, द 9th लेवल। और यहाँ पर हम भगवान जी की सेवा करेंगे इस सब रसों में, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो प्रिय भक्तगण, आज का जो सत्संग है हम लोग उसको यहाँ विराम देंगे, क्योंकि वी हैव लेस देन 1 मिनट। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो आप लोग साथ दिए, बहुत धन्यवाद। I would like to just hear from some of you. So have you been able to learn something? This is just a brief. 40 मिनट में कितने बता सकते हैं? Anyone? You have any questions? Hare Krishna. Dipti, you have any question? Because this. Very good. Okay. So have you understood how the Bhakti Lata Bij, how it functions? Very good, very good. So I think ये जो सत्संग है इसको हम लोग अभी यहाँ विराम देंगे। बहुत धन्यवाद आप लोग आज आए। So please take care, keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare। और आप लोग भक्ति मार्ग पर चलते रहेगा। So dear devotees, thank you for those who have followed us on Facebook. Thank you so much। और सत्संग तो हमारा चलता रहता है। We have daily reading of Srila Prabhupada books। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और
जो भी सत्संग होता है हमारे नामट की ओर से, आप लोग वहां पे भी आ सकते हैं संग पाने के लिए। हरे कृष्णा। दास दासानुदास कौन तेरा दास। हरे कृष्ण।